Hello everyone, welcome back. My name is Prerna and today we'll start second chapter of class 7 science, that is nutrition in animals. In the first chapter, that was nutrition in plants, we have learned that how plants take food or how plants make their own food, and those plants which cannot make their own food, how they can take food. There are many ways they take foods. Okay, so now in this chapter we'll learn about the nutrition in animals, means what are the processes by which animals take food, what are the methods, what are their modes of nutrition. Okay, so let's start this chapter. Firstly, we'll see the introduction. So we know that mode of nutrition in animals is heterotrophic. There is heterotrophic mode of nutrition in animals, means they take their food from other organisms, they cannot make their own food. Okay, and animals get their food from plants either directly or indirectly by eating plants. ठीक है, they take their food directly from plants by eating the plants products, and in how indirectly they eat the animals, those animals that eat plants. So in this way they take the food from plants indirectly. Okay, so because animals are heterotrophic, they cannot prepare their own food, so what they do, they eat plant products or they eat animals, those animals that eat plants. Okay, so directly or indirectly they take food from plants. Okay, all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. See, what is nutrition? There are many steps in nutrition. Why we need food? We need food for our growth, right? So we need food for our growth, for our maintenance, but what are the steps? What does food do in our body? So there are five major steps of nutrition, okay, in humans. So first step that we will take in food through our mouth, right? The food will be digested. Okay, then that digested food will be absorbed, then that absorbed food will be assimilated or will be used, and it will produce energy. Okay, and the last step is egestion, means the undigested food will be eliminated from our body. So the main steps of nutrition in humans are ingestion. Ingestion means intake of food through the mouth. Okay, next step is digestion. After food intake, when food is taken by the human body by its mouth, then the food will be digested. Okay, when the full food will be completely digested, then what is the next step? It will be absorbed by the body. So then the third step is absorption. Okay, absorption of food. After absorption, that absorbed food will be used by the body cells. That process is called assimilation. Okay, and the last step is egestion. Egestion means the removal of undigested food from the body. Okay, removal of undigested food. There is a difference between excretion and egestion. Okay, excretion is also removal of waste products from the body, and egestion is also a type of excretion. Okay, but what is the difference? Excretion is in broad sense, means इट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. वो वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है. इट कैन बी स्वेट ऑल्सो, सॉल्ट्स ऑल्सो, एनीथिंग. बट इफ इट इज़ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, then the word here is egestion. Okay, egestion is the removal of undigested food. Okay, so food consists of many components. You already know these are proteins, vitamins, minerals, carbohydrates, fats, water, roughage. Okay, and the components of food such as carbohydrates are complex substances. I already told you that plants prepare food by the process of photosynthesis, and in the process of photosynthesis they make glucose, and they store the food in the form of starch, and starch is a complex carbohydrate. Glucose is a simple carbohydrate
and starch is a complex carbohydrate, and we take that starch from the plant. So we take carbohydrate, means what, which carbohydrate we take starch, that is a complex carbohydrate. Okay, so the components of food such as carbohydrates are complex substances, and our body cannot absorb these complex substances. It needs to be converted into simple substances. Okay, and how it will convert into simple substance? By the process of digestion. Okay, so these complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. Okay, complex substances are broken down into simpler substances in our body, and the process of breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Clear? Next is different ways of taking food. I told you that we take food. This is the first step, that is called ingestion. Ingestion means taking up of food, खाने को अपने मुंह में लेके जाना, ठीक है. But in case of humans we have mouth, we take food from our mouth. Okay, but many organisms are there which do not have mouth. सबका food intake करने का तरीका अलग होता है. So we'll study the different ways of taking food by different organisms. So the mode of taking food into the body varies in different organisms. अलग अलग organisms में अलग अलग तरीका होता है food intake करने का. Okay, so if we'll talk about the bees and hummingbirds, they suck the nectar of plants. Plants के अंदर जो स्वीट जूस होता है, ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स का जो जूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड नेक्टार. और जो बीज होती हैं एंड द हमिंग बर्ड्स, दे सक द नेक्टार ऑफ द प्लांट्स. दे सक द, तो वो कैसे लेते हैं? सकिंग के थ्रू वो सक करते हैं उसे, ठीक है. नेक्स्ट इज इफ विल टॉक अबाउट द इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मीन्स जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल नवजात जिसको बोलते हैं, जो पैदा हुआ है अभी या 2 महीने का 3 महीने का जैसे बच्चा होता है. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. वो क्या खाते हैं? कुछ खाते नहीं है एक्चुअली, दे ओनली फीड ऑन मदर्स मिल्क. नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट द स्नेक्स. Snakes like the python. Python is a poisonous snake. Python, sorry, it is not a poisonous snake, sorry. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. तो जो स्नेक्स होते हैं वो जिस एनिमल का शिकार करते हैं उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं. ओके, हम जैसे खाना खाते हैं उसको चबाते हैं अपने टीथ से, ऐसा स्नेक्स नहीं करते हैं. दे जस्ट स्वेलो देयर प्रे. प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है, तो अपने शिकार को निगल जाते हैं. एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वा मीन्स वाटर. ओके, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले. ओके, सो एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर. वो क्या करते हैं? पानी के अंदर जो फूड होता है, सो दे लिव इन वाटर, तो वो वाटर इनटेक करते हैं, अपने मुंह से क्या है पानी ले लेते हैं, और पानी के अंदर जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पानी में तैर रहे होते हैं, उनको वो फिल्टर करते हैं, ठीक है, और वो फूड पार्टिकल को वो खा जाते हैं, और बाकी पानी जो होता है वो अपने बॉडी से वो बाहर रिलीज़ कर देते हैं. ओके, सी यहाँ पे एक स्नेक का नाम आया, दैट इज़ पाइथन. आई टोल्ड यू दैट पाइथन इज़ नॉट अ पॉइजनस स्नेक. ठीक है, मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं दे आर नॉट पॉइजनस, ओनली अ फ्यू आर पॉइजनस. लाइक यू हैव हर्ड अबाउट कोबरा, ठीक है, कोबरा इज़ पॉइजनस. क्रेट, माम्बा, अफाई, these are poisonous snakes. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स दैट वी सी आर नॉट पॉइजनस. बहुत ही कम स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, दैट इज़ अ पिक्चर ऑफ स्टार फिश. सो हाउ अ स्टार फिश feeds on. Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate.
जो भी शेल्स होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। जैसे आपने एक एग देखा होगा, नॉर्मल एग जो आपके घर में आता है, उसके ऊपर जो वाइट कलर की शेल होती है दैट इज़ ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो हार्ड शेल होती है। तो जो स्टारफिश होती है वो उन एनिमल्स पर फीड करती है, उन एनिमल्स को खाती है जो उस कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से कवर्ड अप होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्टारफिश कैसे खाना खाती है, वो अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल लेती है, ठीक है, और जो भी उसका खाना है, वो जो एनिमल है वो उसको ले लेती है, और फिर वो जो स्टमक होता है उसका वो दोबारा से उसकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो भी उसने एनिमल को अपने स्टमक में लिया, इनटेक किया, वो धीरे धीरे उस एनिमल को डाइजेस्ट करती है। तो इस तरह से स्टारफिश अपना खाना इनटेक करती है, लेती है अपनी बॉडी के अंदर। सो you have seen here that different organisms have different ways of taking food. So now the question is how we take food. So we have a mouth, we take food by our mouth, and we have hands. Okay, हम अपने hand से खाने को अपने मुंह तक पहुंचाते हैं. Okay, this way we take our food. So next is digestion in humans. Now we'll read about the digestion in humans. Human body के अंदर food intake किया हमने, खाने को मुंह में रखा, means we have ingested our food. First step is ingestion. Ingestion means intake of food, and how we intake our food by our hands through our mouth. ठीक है, हम अपने मुंह में खाना रखते हैं, means हमारी बॉडी के अंदर वो खाना चला गया, ठीक है. सो वी हैव इंजेस्टेड अवर फूड. सो अवर नेक्स्ट एंड द सेकेंड स्टेप इन दिस प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज डाइजेशन, ठीक है. फूड को इंजेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे. तो डाइजेशन के लिए क्या होता है, हमारा जो खाना है सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में, और माउथ के अंदर ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. यू नो सलाइवा, आपने वर्ड सुना होगा सलाइवा. सलाइवा कहाँ से रिलीज़ होती है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होती है. अगर आपको सलाइवा नहीं पता है तो आपने सुना होगा मुंह में पानी आ जाना. कोई भी टेस्टी डिश देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो वो मुंह में पानी आना मीन्स वो क्या होता है, दैट इज़ सलाइवा. वो क्या होती है, आपके मुंह में सलाइवा होती है, एंड दैट इज़ रिलीज बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, तो सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ. माउथ में, मुंह में आपके जैसे ही खाना जाता है, इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग. तो मुंह के अंदर क्या डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, the starch content, the carbohydrate content present in the food starts digesting in the mouth itself. Okay, and that area, मतलब जो आपका माउथ का एरिया, that is called the buccal cavity. ठीक है, जो आपका मुंह होता है उसको हम बोलते हैं buccal cavity. So the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity. तो बॉडी के अंदर क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक कैनाल की फॉर्म में है. कैनाल समझते हैं आप, एक पाइप के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक है. और वो कैनाल जो है आपके बक्कल कैविटी से, मतलब कि माउथ से स्टार्ट होती है. अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ से आपके वो कैनाल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, माउथ से, और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाके सी ये दिस एरिया इज़ कॉल्ड द एसोफेगस. एसोफेगस हम इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है. और फूड पाइप उसके बाद ये कंटिन्यू हो रही है, ये एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द स्टमक, ठीक है. स्टमक के बाद ये एरिया जो है दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके अराउंड ये जो आपको दिख रही है दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस लास्ट पार्ट इज़ कॉल्ड एनस, ठीक है. तो ये बहुत बड़ी ट्यूब के जैसे है. सो दिस कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है, ठीक है, इस कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही आपका सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है. सो द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस. ओके, वी टेक फूड फ्रॉम माउथ एंड डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ. तो डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू नीचे तक जाता है, सभी पार्ट्स में से होता हुआ, एंड इट द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स एलिमिनेटेड थ्रू द एनस. ओके, सो विल सी हियर,
द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. अभी मैंने आपको बताया जो कैनाल है, दिस एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू मैनी कंपार्टमेंट्स. सो फर्स्ट इज द बक्कल कैविटी, दैट इज माउथ. नेक्स्ट इज फूड पाइप और एसोफेगस, दिस वन. एंड देन द स्टमक, then small intestine, then large intestine ending in the rectum. ठीक है, large intestine का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं rectum. And finally the last part which is called the anus. So these are all the compartments in alimentary canal, and these all compartments have a different role to play in the process of digestion. Okay, so these parts together form the alimentary canal, or we say digestive tract. Okay, ट्रैक्ट मीन्स एक तरह से हम रास्ता बोल सकते हैं. ठीक है, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल बोथ आर सेम. द फूड components gradually gets digested as food travels through the various compartments. माउथ से होता हुआ फूड जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स के थ्रू पास होता रहता है, वैसे वैसे उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होते रहते हैं. ठीक है, एंड द इनर वॉल्स, ठीक है, इस तरह से वो डाइजेस्ट होते रहते हैं. अब मैंने आपको स्टमक बताया, दिस इज़ द स्टमक. सो द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल. ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ. सबसे फर्स्ट ग्लैंड जो आपके माउथ में ही होती है, दैट इज़ द सलाइवरी ग्लैंड, दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन. और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लीवर है. लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, लीवर ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन प्रोसेस. एंड देन द पेनक्रियाज ऑल्सो टेक्स पार्ट इन डाइजेशन प्रोसेस. हाउ दे टेक पार्ट, वॉट इज़ देयर रोल, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, एंड द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. जो ये ग्लैंड्स होती हैं, ये डाइजेस्टिव जूस कुछ लिक्विड मटेरियल सिक्रीट करती है जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं. और उन डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, दीज डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, means they break down the food. Okay, or we can say these juices digest the food. Okay, so the digestive tract and the associated glands together make the digestive system. So what are the components of digestive system? Digestive system किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? So we can write alimentary canal, and there are many components of alimentary canal. These are the buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. Okay, and along with the alimentary canal there are some glands that also helps in the digestion process, like salivary glands, pancreas, liver. Okay, all these things make up the digestive system. Everything, the name I told you, these everything has a role in the process of digestion. Okay, so we'll see all the parts one by one. So first is the mouth and buccal cavity. सबसे पहले हम, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है, सो विल फर्स्ट टॉक अबाउट द माउथ एंड द बक्कल कैविटी. आपको पता है कि माउथ के अंदर टीथ होते हैं. एंड हाउ मैनी टीथ डू वी हैव 32 टीथ्स, मीन 16 सेट ऑफ टीथ. 16 टीथ आपके अपर जॉ में होते हैं और 16 टीथ आपके लोअर जॉ में होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है टीथ का, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जिसमें आपको दिए गए हैं. तो सबसे पहले अगर हम आगे फ्रंट टीथ की बात करेंगे, ये दीज आर द फ्रंट टीथ. ठीक है, ये जो आपके फ्रंट टीथ हैं इनको बोलते हैं हम इंसीजर. ठीक है, इंसीजर होते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, दीज आर द कैनाइन. नेक्स्ट सेकेंड जो 2 टीथ आपको दिखेंगे, इधर से 2 और इधर से 2, दीज आर कॉल्ड द प्री मोलर्स. एंड जो लास्ट वाले हैं, दीज आर कॉल्ड द मोलर्स. ठीक है, तो ये किस किस तरह से काम में आते हैं, जो ये अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं टीथ को, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. आपको बीच में दिखाया गया है सब टीथ का स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले और सबसे आगे जो फ्रंट पे आपके टीथ हैं, इंसीजर. इंसीजर टीथ आपके जो हैं किसी भी चीज़ को कट करने के या बाइट करने के काम आते हैं. आप कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, आप जब आप खा रहे हो तो आप नोट करना कि आप कौन से टीथ की हेल्प से किसी चीज़ को कट कर रहे हो या बाइट कर रहे हो. तो आप देखोगे कि आगे वाले टीथ से आप, जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, उससे आप किसी चीज़ को बाइट करते हो. सपोज यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो आप आपके जो फ्रंट टीथ हैं उससे आप बाइट करोगे. ठीक है, सो दीज बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो आपके कैनाइन टीथ्स हैं उनसे आप क्या करते हैं, these help in the tearing of
समथिंग, ओके। कोई भी चीज़ आपको टीयर करनी है, ठीक है, टीयर मतलब फाड़ना, ठीक है, तो टीयर करने के लिए आप कैनाइंस का इस्तेमाल करते हो। उसके बाद मोलर्स, प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं, उनको आप खाने को या किसी भी फूड कंपोनेंट को, कोई भी फूड है आपका, कुछ भी चीज़ आप खाते हो उसको क्रश करने के और ग्राइंड करने के काम में लाते हो, ठीक है। सो अलग अलग डिफरेंट शेप्स के टीथ जो हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, एंड टोटल वी हैव 32 टीथ्स, or we can say we have 16 teeth in both the jaws, okay. So the what is written here, the process of taking food into the body is called ingestion, and you know that ingestion मीन्स डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. सो इंजेशन हम कहाँ करते हैं, हम फूड कहाँ इंजेस्ट करते हैं, इन आवर माउथ, ओके. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसीज. तो टीथ भी जो है आपकी एक तरह से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं मैकेनिकली, ओके, नॉट केमिकली बट मैकेनिकली. हाउ क्या कर रहे हैं टीथ, आपके फूड को मतलब कि क्रश करके उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. और जब टीथ उस फूड को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो फूड होते हैं, आपका फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो सलाइवा होती है, सलाइवा भी मिक्स हो जाती है. सो इन दिस वे डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो this was the first compartment of the alimentary canal. Next is we'll say see milk teeth and permanent teeth. मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, आपने ये दोनों वर्ड सुने होंगे. मिल्क टीथ ही मतलब कि दूध के दांत, ओके, एंड परमानेंट टीथ जो आपके अभी हैं, ठीक है. तो व्हाट आर मिल्क टीथ, मिल्क टीथ क्या होते हैं. सो द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दीज फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. सबसे पहले जो बच्चे के दांत आने स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे आपको पता है वो टूटने भी लग जाते हैं, ठीक है. उन दांतों के टूटने के बाद दोबारा से टीथ आते हैं, ठीक है. तो स्टार्टिंग में जो टीथ होते हैं बच्चे के आते हैं धीरे धीरे और फिर वो टूट जाते हैं 6 to 7 years, 6 to 8 years की एज तक. उन टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, ओके. उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ. और मिल्क टीथ कितने होते हैं, दीज आर 20 इन नंबर, ओके. मिल्क टीथ आर 20 इन नंबर, दीज आर 20. एंड द सेकेंड सेट that replaces them are the permanent teeth. 6 से 8 साल की उम्र तक जो टीथ गिर जाते हैं उसके बाद जो दोबारा से टीथ आते हैं, these are the permanent teeth, ओके. इसको बोलते हैं सेकेंड सेट ऑफ teeth. These permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. ये जो permanent teeth होते हैं वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, आपकी पूरी लाइफ रहते हैं. हो सकता है कि ओल्ड एज में कुछ टीथ गिर जाते हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा कुछ ओल्ड पीपल को जो फॉल्स टीथ लगाते हैं, नकली के टीथ लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनके जो परमानेंट टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है. और नहीं तो हो सकता है कि कुछ डेंटल डिजीज़, कुछ टीथ के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डेंटल प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है वो टीथ, आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो निकल जाएँ या निकालने पड़े. सो ऐसे भी होता है. बट बेसिकली जो ये परमानेंट टीथ होते हैं वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ, ठीक है. आई टोल्ड यू अबाउट द सलाइवा. आपके जो माउथ होता है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, दे सिक्रीट द सलाइवा, वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं. सो व्हाट इज़ सलाइवा एंड दी सलाइवरी ग्लैंड्स. और सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा का क्या काम होता है. सी अवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा, ठीक है. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं. सो मैंने आपको बताया कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, ओके. सो हाउ सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. सलाइवा कैसे काम करती है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में. लेट्स सी विद एन एक्टिविटी. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है. एक टेस्ट ट्यूब को हम नाम दे देंगे टेस्ट ट्यूब ए और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब को नाम दे देंगे टेस्ट ट्यूब बी. इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 teaspoonful ऑफ बॉयल्ड राइस. टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या डालेंगे, बॉयल्ड राइस, जो उबले हुए चावल होते हैं उसको हम डाल देंगे. एंड इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 teaspoonful ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम वही राइस डालेंगे लेकिन उसको 3 से 5 मिनट तक च्यू करके, मतलब कि चबा के मुंह में लेंगे, उसको चबाएंगे और फिर उसको उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे,
ठीक है। तो आपको पता है जब हम फूड को च्यू करते हैं तो क्या होता है, सलाइवा भी उसमें मिक्स हो के उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। तो हम देखेंगे अभी दोनों टेस्ट ट्यूब में जो हमने फूड डाला है, एक में हमने फूड डाला मीन्स जो बॉइल्ड राइस डाले हैं विदाउट च्यूइंग, मतलब कि बिना च्यू किए डाले हैं। नेक्स्ट में हमने उसको च्यू करके जिसके अंदर सलाइवा भी मिक्स हो गई थी वो वाले डाले हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल सी आफ्टर ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है, हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। आपको पता है कि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। सो व्हाट वी विल सी, जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया तो जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसके अंदर हमने बॉइल्ड राइस डाले थे उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स द इट हैज़ द स्टार्च प्रेजेंट इन इट, ओके। जो आपका टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा। कलर चेंज नहीं मतलब कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। राइस है वो भी बॉइल्ड राइस है, दोनों में सेम थिंग है। बट जो सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने क्या किया, उसको राइस को च्यू करके डाला, ठीक है। तो जब हमने च्यू कर दिया तो वो जो स्टार्च कंटेंट है वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर भी वो स्टार्च नहीं दिखा रहा है। इट मीन्स टेस्ट ट्यूब बी डज नॉट हैव स्टार्च प्रेजेंट। तो वो स्टार्च कहाँ गई, इट गेट्स डाइजेस्टेड इन द माउथ बाय द सलाइवा, ओके। So, what is the role of our tongue? Let's see. The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity. buccal cavity के फ्लोर से पीछे से कनेक्ट होती है आपकी टंग, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें कोई बोन नहीं होती है, ठीक है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। आपके मुंह के अंदर आप टंग को कैसे भी मूव कर सकते हो। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, दिस इज़ द मेन फंक्शन। आपको पता है हम बात करते हैं तो हम टंग का यूज़ करते हैं, टंग के बिना आप बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन डाइजेशन में, मतलब कि फूड से रिलेटेड इसका क्या फंक्शन है, लेट्स सी। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, ठीक है। क्या करता है, टंग का क्या रोल होता है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करना। जब आप खाने को च्यू कर रहे होते हो, चबा रहे होते हो, तो टंग का क्या काम होता है, सलाइवा एंड दैट च्यूड फूड को मिक्स करना, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द स्वेलोइंग ऑफ द फूड, खाने को निगलने में, मतलब कि बक्कल कैविटी से खाने को ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप तक लेके जाने में भी कौन हेल्प करती है, टंग हेल्प करती है, ओके। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। और हमारी टंग की हेल्प से ही हम अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। आपको पता है हम अलग अलग टेस्ट की चीज़ें खाते हैं। वी ईट स्वीट थिंग्स, वी ईट सॉल्टी, वी ईट सोर थिंग्स, सोर फ्रूट्स खाते हैं हम, ठीक है। और कुछ कड़वी चीज़ें भी हैं जो हम खाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का जो टेस्ट होता है वो टंग के अलग अलग रीजन से हमें आता है। तो टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने में कि हमने कौन सा खाना खाया है, मतलब जो खाने का टेस्ट है वो क्या है, वो मीठा है या फिर खट्टा है, और इट इज़ बिटर, ठीक है, या फिर सॉल्टी है। तो वो हमें किससे पता चलता है, टंग से पता चलता है। टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं उससे पता चलता है। तो टंग के कौन से रीजन पे हमें कौन सा टेस्ट आता है, लेट्स सी। क्या होता है, जो आपका ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, सॉरी ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, इससे आपको कोई भी सॉल्टी चीज़ का पता चलता है, ठीक है। सॉल्टी टेस्ट, कोई भी चीज़ आप जो सॉल्टी खाते हो वो टंग के इस रीजन पे आपको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको ये दिख रहा है रीजन, दिस इज़ फॉर स्वीट, ठीक है। ये जो आपको पीछे ये जो रीजन दिख रहा है, दिस इज़ फॉर सोर थिंग। और सबसे पीछे जो रीजन होता है दैट इज़ फॉर बिटर। कोई भी आप कड़वी चीज़ खाओगे तो आपको टंग के सबसे पीछे वाले हिस्से में पता चलेगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज स्वीट्स एंड टूथ डिके। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूथ डिके? डीके का मतलब होता है सड़ जाना, गिर जाना, ठीक है, दांतों का ख़राब हो जाना। आपको पता है दांत, परमानेंट टीथ जब ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दांतों में कीड़ा वगैरह लग जाना जो भी है उसको हम टूथ डिके बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्वीट्स इन टूथ डिके? देखिए जितना ज़्यादा मीठा आप खाते हो
उतना ज़्यादा आपके टीथ पर अफेक्ट होता है। कैसे? लेट्स सी। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो इन इट। ओके, अगर हम अपने टीथ को और माउथ को खाने के बाद, कोई भी चीज़ हमने खाई उसके बाद हम अपने माउथ को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं फूड के, तो उन पर क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। इसीलिए हमें फूड को हमेशा, माउथ को हमेशा रिंस करना चाहिए वाटर के साथ, उसे क्लीन करना चाहिए। ओके, सो अगर वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। जो फूड आपके मुंह में चिपक गया है या बच गया है, दांतों में कई बार लग जाता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके अंदर जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं उनको तोड़ते हैं। ठीक है, उनको तोड़ते हैं और क्या करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज़ करते हैं तो वो एसिड क्या करते हैं, जो एसिड रिलीज़ होता है बाय द बैक्टीरिया, सो दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ एंड दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। ठीक है, ये एसिड से क्या होगा, जो है टीथ हैं धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक हेल्दी टीथ है, धीरे धीरे देखोगे आप, ये देखो यहाँ से ये जो टूथ है डीके होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ये कम्प्लीटली यहाँ पे कैविटी बन गई है। ठीक है, सो इस तरह से टूथ डीके का प्रोसेस होता है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे, टाइम पे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस में क्या होता है, अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में जो आपका टूथ होता है, जो दांत है, उसको निकालना भी पड़ता है। ठीक है, सो जो चॉकलेट्स होती हैं, स्वीट्स, अभी स्वीट्स का क्या रोल है वो मैं आपको बता रही हूँ। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है। ठीक है, एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके को फास्ट करने में इन सब स्वीटनर्स का, जो भी ये स्वीट थिंग्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट होती है, तो उससे जो टूथ डिके की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसीलिए आपको ज़्यादा मीठी चीज़ें जो जिनके अंदर ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है शुगर का, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जितना शुगर रिच जो जो आपका शुगरी फूड है आप खाएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो आपके टूथ को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यू शुड नॉट ईट दीज स्वीट फूड्स मोर ऑफन। ओके, सो अवर नेक्स्ट कंपार्टमेंट्स और कंपोनेंट हम कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है दैट इज़ द फूड पाइप और ओसोफेगस। पक्कल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज़ द फूड पाइप। ओके, तो फूड पाइप का यहाँ पे आपको डायग्राम शो किया गया है, दिस इज़ द फूड पाइप। ओके, सो क्या होता है, जो खाना मुंह के अंदर, माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ है फूड का, जो कि मुंह के अंदर सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ है। ठीक है, और एक फूड के अंदर आपको पता है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और फैट्स होते हैं, उन सब को भी डाइजेस्ट होना है। तो उन सब के लिए जो खाना है वो मुंह से होकर टंग की हेल्प से वो स्वेलो करते हैं हम फूड को, और स्वेलो होने के बाद वो खाना कहाँ जाता है, दैट एंटर्स इनटू द फूड पाइप। ठीक है, ये आपको जो ये ब्राउन पोर्शन दिखा रखा है ये फूड है, तो फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है। ठीक है, सो द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। आपके नेक और चेस्ट से होती हुई फूड पाइप जाती है। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप की जो वॉल दिख रही है ये मूव करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं उसको, तो जिसके थ्रू क्या होता है, जो वो फूड है धीरे धीरे नीचे
जाता रहता है, ठीक है। सो दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। एक्चुअल में ये जो वॉल की मूवमेंट्स हैं ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं, क्योंकि माउथ से लेकर एनस तक जो फूड है वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स की जो मूवमेंट है उसी की वजह से वो ट्रैवल करता है, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और धीरे धीरे जो खाना है वो नीचे जाता रहता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अब देखो फूड पाइप से खाना कहाँ जा रहा है, ये है अब हमारा स्टमक। सो स्टमक इज़ कनेक्टेड विद द ओसोफेगस और फूड पाइप, तो फूड पाइप से खाना जाता है हमारे स्टमक में। कई बार क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो फूड क्या है हमारे मुंह के थ्रू ही बाहर निकल आता है दोबारा से, जिसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना ऐसा, हमारा जो फूड है वो स्टमक तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमारा जो खाना है वो वॉमिट हो जाता है, मतलब कि वो ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। ओपोजिट मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, एंड मुंह के थ्रू हमारे बाहर आ जाता है, दैट इज़ वॉमिटेड आउट, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आफ्टर फूड पाइप इज़ अवर स्टमक, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टमक। देखो स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, आपको दिख रहा होगा एक बैग के जैसा है, इसकी शेप कैसी है, फ्लैटेंड यू शेप है, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट मतलब आप देखोगे जो इसकी चौड़ाई है, ये विड्थ जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है दैट इज़ द स्टमक। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टमक? द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, है ना। सो इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड एट द अदर एंड, अगर हम इस एंड की बात करेंगे, दिस एंड इट ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। सो एक साइड से ये फूड पाइप से कनेक्ट होता है ऊपर के साइड से, और एक साइड से ये किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो आपका स्टमक है, स्टमक के ऊपर जो लाइंस होती हैं, इनर लाइनिंग है, जो इसका इनर मेम्ब्रेन होती है, वो क्या सिक्रेट करती है, स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है, और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। देखो अब इन तीनों चीज़ों का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूकस की। म्यूकस क्या करती है, हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको कवर अप कर लेती है, मतलब उस पर एक लेयर बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ काम करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो म्यूकस का क्या रोल होता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जिससे हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो अफेक्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में स्टमक की जो वॉल है, इनर वॉल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बीच में एक म्यूकस की लेयर बन जाती है। तो वो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ओके। जो भी फूड पाइप से फूड आया है उसको डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं, ठीक है। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, ठीक है। एसिड क्या कर रहा है, बैक्टीरियाज को मार देता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं, और जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक के अंदर, जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, अदरवाइज दे विल नॉट वर्क, दे विल नॉट डू देयर फंक्शन इफ द मीडियम विल नॉट बी एसिडिक, ओके। एंड द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन्स का डाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया जो स्टमक का दूसरे वाला एंड है दैट इज़ कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि स्टमक के बाद जो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस वन,
हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बोलते हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट है एक एलिमेंट्री कैनाल का। देखो कितने ज़्यादा इसमें कॉइल्स हैं, तो ये सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, बट इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। 7.5 मीटर्स लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। तो आपको मैंने बताया था लीवर एंड पेनक्रियाज आर द ग्लैंड्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन। हाउ दीज ग्लैंड्स हेल्प इन द डाइजेशन? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट द फूड। सो जो लीवर है और जो पेनक्रियाज है उसके जो सिक्रीशंस हैं, मतलब वो जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, वो कहाँ सिक्रीट करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती है। ओके, और अगर हम लीवर की बात करें, लीवर की सिक्रीशंस कहाँ जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं। ओके, द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है, आपको लीवर दिखाई देगा हेयर। तो लीवर क्या होता है? दिस इज़ ऑन द राइट साइड। अब अगर आप देखोगे आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका स्टमक रहता है, राइट साइड में जो लीवर है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और लीवर कौन से डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है? दैट इज़ बाइल जूस। लीवर सिक्रीट बाइल जूस एंड इट इज़ स्टोर्ड इन अ पाउच, या फिर हम सैक बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर ये 1 सेकेंड, दिस स्ट्रक्चर you can see here, this is the gall bladder. ओके, तो गॉल ब्लैडर के अंदर आपका क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस सिक्रीट होता है, एंड दैट इज सिक्रीटेड बाय द लीवर. इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ओके, द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और बाइल किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनक्रियाज. पेनक्रियाज आपको इसमें दिख रहा होगा, दिस इज़ द पेनक्रियाज. ठीक है, ये जो आपको पेनक्रियाटिक ग्लैंड दिख रही है स्टमक के जस्ट नीचे, दिस इज़ द पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज क्या है? इट इज़ अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. पेनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. Pancreatic juice जो है, जो digestive juice that is secreted by pancreas, it acts on carbohydrates, fats and proteins and it changes them into simpler forms. Okay, the partly digested food now reaches the lower part of small intestine. अब जो food digest हो गया है that is partly digested, अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है. ठीक है, मतलब हो गया है, अब उसके अंदर से क्या होगा? अब उसमें एब्जॉर्प्शन होगा. देखो कैसे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट होता है, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है, उस पार्ट के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है आपका वो जाता है. ठीक है, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो है पुश होता रहता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. तो जब वो खाना लोअर पार्ट में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वहाँ पे क्या होगा? लोअर पार्ट में जाने के बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, इंटेस्टाइनल मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी जूसेस सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो उनसे वो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है, लीवर के सिक्रीशंस लेने के बाद, पेनक्रियाज के सिक्रीशन लेने के बाद जो खाना, जब वो खाना लोअर पार्ट में पहुंच जाएगा इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो क्या होगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेंगी, उससे वो खाना क्या है? कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा. और डाइजेस्ट होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज में. ठीक है, स्टार्च जैसे होता है, स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर और वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में. सो कार्बोहाइड्रेट आफ्टर डाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ओके, फैट्स आफ्टर डाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स gets converted into amino acids
आफ्टर डाइजेशन। देखो प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स की चेन होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स की यूनिट्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब प्रोटीन को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, उससे अमीनो एसिड्स बनेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि डाइजेशन की प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ग्लूकोज में, फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ओके, सो दिस वाज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं, देखो जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, आई टोल्ड यू दैट आफ्टर डाइजेशन द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। फूड डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। सो द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो ब्लड वेसल्स में जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, ठीक है। सपोज ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके ऊपर बहुत सारे फिंगर जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं, हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं विली, ठीक है। दिस इज़ द प्लूरल फॉर्म, सिंगल को बोलेंगे हम विलस, ठीक है। सो इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनका काम क्या होता है, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इनसे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा अंदर इनर वॉल का, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवली होगी, ठीक है। सो द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स, ओके, एंड द absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances like proteins required by the body, ठीक है। ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड होगा जिसको ब्लड कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ब्लड के थ्रू ये जो खाना है, आपको पता है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो ब्लड के थ्रू ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास, सभी सेल्स के पास ये जो फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड है, ये चला जाएगा और वहाँ पे वो बॉडी जो सेल्स होंगे, अलग अलग ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं, वो इस खाने को यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपको पता है, एब्जॉर्ब्ड फूड को जब यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी यूज़ करती है अपनी बॉडी टिश्यूज़ को बिल्डअप करने के लिए, सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। दैट इज़ द फोर्थ प्रोसेस, ठीक है, फोर्थ स्टेप इन न्यूट्रिशन। ओके, सो इन द सेल्स, सेल के अंदर क्या होता है, देखो सेल के अंदर ग्लूकोज, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। जब डिफरेंट सेल्स के पास वो ग्लूकोज, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज है वो पहुंचता है, तो वो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे अंदर, तो वो ऑक्सीजन कहाँ यूज़ होती है, देखो अभी कहाँ यूज़ होती है, तो जो ग्लूकोज हमने ब्रेक किया, मतलब जो डाइजेस्ट हुआ ग्लूकोज, वो सेल्स के पास गया, सेल्स के पास फिर ऑक्सीजन भी जाती है जो हम इनहेल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बॉडी से बाहर चली जाती है, दैट इज वी एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो इस तरह से जो हम फूड लेते हैं, अल्टीमेटली वो फूड से क्या होता है, हमें एनर्जी इस तरीके से मिलती है। ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद वी गेट एनर्जी। ओके, सो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद फूड एब्जॉर्ब हो गया और ऊपर जो सेल्स थे, सब बॉडी के सेल्स थे, उन सब ने उस फूड को एसिमिलेट कर लिया और उसमें से एनर्जी भी रिलीज़ कर ली। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, और जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। एंड वेयर इज लार्ज इंटेस्टाइन, विल सी, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है,
दिस वन, ये जो है आपको है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड है आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हम देखते हैं कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। सी, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको फिगर में आपने देखा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ठीक है, बट वाइड होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है कंपेयर करेंगे अगर हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ 7.5 मीटर अराउंड। ओके, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. Small intestine से जो undigested और unabsorbed food था वो कहाँ आया था, large intestine में। तो large intestine क्या करती है, जो उसके अंदर food, जो undigested food है उसके अंदर जो water और salt content होता है उसको absorb कर लेती है large intestine की walls, ठीक है। And the remaining waste passes into the rectum. Where is rectum? दिस इज़ द रेक्टम, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे एक स्टोरेज सैक टाइप दिख रहा होगा, दिस इज़ द रेक्टम। तो रेक्टम के अंदर जो आपका अल्टीमेटली जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वाटर और सोल्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद, तो वो रेक्टम में चला जाता है आपका रिमेनिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे रहता है, सेमी सॉलिड फिसेस की फॉर्म में रहता है। एंड दैट फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और वो जो फीकल मैटर है, जो सेमी सॉलिड फीकल मैटर है, दैट इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस, वो एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। Okay, the process is called egestion. Egestion means removal of the undigested waste from the undigested food from the body. Okay. सो यहाँ पे आपका डाइजेशन जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा हमने देखा, उसके क्या क्या रोल होते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, सबका क्या क्या रोल होता है फूड के डाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन देखेंगे, दैट इज़ डायरिया। डायरिया क्या होता है, आपने सबने डायरिया वर्ड ज़रूर सुना होगा। सो क्या होता है डायरिया के अंदर, सम टाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। मैंने आपको बताया जो आपका फीकल मैटर होता है दैट इज़ सेमी सॉलिड, ठीक है, बट सम टाइम्स क्या होता है आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, एंड यू नीड टू पास वाटरी स्टूल्स, ठीक है, जो आपका फीकल मैटर होता है दैट इज़ वाटरी, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। आपने लूज मोशन वर्ड सुना होगा, ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग। ऐसा क्यों होता है, तो डायरिया की कंडीशन हमारे साथ क्यों होती है, देखो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। फूड पॉइजनिंग आपको पता होगा, फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, आपका जो फूड है वो ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करते हैं तो वो फूड को पॉइजन बना देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। या फिर इनडाइजेशन की वजह से आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन कंडीशंस की वजह से आपको क्या कंडीशन आती है, आपकी बॉडी के अंदर डायरिया की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। और कई बार ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, हार्मफुल हो सकती है वो आपके लिए, ठीक है। क्यों हो सकती है हार्मफुल, क्योंकि आपकी बॉडी से फ्रिक्वेंटली अगर वाटरी स्टूल्स पास होंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, वाटर और सोल्ट्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरिया इज़ अ हार्मफुल कंडीशन, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड यू शुड गो टू द डॉक्टर, बट बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, अब आप डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जा सकते हो, सो व्हाट यू कैन डू ऑफ योर ओन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, ठीक है, आप पानी को बॉयल करके और उसको ठंडा करके आप पी सकते हो। बिकॉज ऑफ डायरिया की वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, सो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है उसके अंदर, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट्स दोनों की कमी होती है, राइट। सो सॉल्ट या शुगर आप कुछ भी उसमें डिज़ोल्व कर सकते हो, ठीक है।
शुगर और सॉल्ट अगर दोनों डिज़ोल्व करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो पानी लेके उसको बॉईल करके सो यू हैव टू ऐड सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन बनाना है आपको और उसको लेना है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली लेते रहना है। सो इस तरह के सॉल्यूशन को हम ORS भी बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको मार्केट से भी मिलता है और इसको आप घर पे भी इजीली बना सकते हो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का इतना ही पार्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन की प्रोसेस ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होती है। यू नो वी डोंट ईट ग्रास, वी कैन नॉट ईट ग्रास, ठीक है। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जो ग्रास होती है वो किस तरह से डाइजेस्ट होती है, और फिर हम देखेंगे कि जो अमीबा होता है, अमीबा इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।